ઓકે મોનિકા. હા, જય સચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડમની લાગી. દાદા ભજન મને લાગી. ભક્તિ રસમાં મનાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાહવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. મારી ડોરે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું કારું. જીવન મારું બન્યું આકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા શરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. કોરલ.
હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા કે પ્રતિ નાનું મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર અહમ ન દુભાય એવી શાશ્વતવાણી, શાશ્વત વર્ધન અને શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. અનુજ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાશ્વત વાણી, શાશ્વત વર્તન અને શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. શ્રેયા. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનું અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. મોનિકા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ટોરલ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા કે પ્રતિજ્ઞાનું બોલાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કે કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા બોલે તો મને મધુર ઉચ્ચ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. અનુજ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ કે ચેષ્ટાઓ, વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. મોનિકા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. શ્રેયા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવન મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ટોરલ. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું, જગત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. जय सच्चिदानंद। श्रेया मंत्र बुलाए, हम फॉलो करेंगे। હા. નમો વીતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો સંતાનમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આર્યરિયાનમ, નમો બુદ્ધાયાણમ, નમો વત્સાયાનમ, સાહુણમ, નમો લોહે સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસે, પડવમ હવે મંગલમ, તે વાસુદેવાય, ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। अव्यय डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपने हल को कमजोर ना करूं, ताकि मेरा शरीर साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सक्सेस में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़े बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबतें और कुशन से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरे सक्सेस कभी ना छूटे, ऐसे परम कृपा करना। प्रार्थना स्वयं काय करूँ और अपने आत्मा को भी केवल बड़का जी माता की सेवा में करूँ, जो सबसे बड़ा महाधर्म है।
मैं हमेशा अपने धर्म के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल शुद्ध प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट मैन और प्रतिनिधि बन पाऊँ। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जैसे चिदानंद। मोनिका लास्ट डे स्टडी का। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में जो समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा और मेरी पढ़ाई सही ढंग से आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। अनुज। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम आपके हैं बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं हम हैं सच्चे, फिर भी है फिर कच्चे, भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर श्रेया हेल्थ। हाँ, सेपरेशन प्रेयर। आप ओके बोलो बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. दक्ष। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा कौन आपले उगु दक्ष लगे। हे शुद्धात्मा दादा कौन आप परमानेंट तो दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा कौन आप रियल उगु है। मीनाक्षी बा हेल्थ गुजराती। स्वस्थ शरीर આપણને શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતેથી મજબૂત બનાવે છે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. मोनिका। जय सच्चिदानंद। स्वास्थ्य शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। श्रेया स्टडी। હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અભ્યાસમાં સખત મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે. મારા લક્ષ્ય સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. ओरल। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नैतिक आचरण ध्यान करने से उत्कृष्ट गुण देगा, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगा। हे दादा भगवान, मुझे तो सहन में शक्ति दो। तत्साधन मीनाक्षी बा। દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સંસાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા ત્રણેયથી સિદ્ધ કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારો વ્યવહાર સુધારશે. દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને એમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. એ દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપી. જય સચ્ચિદાનંદ. मोनिका। जय सच्चिदानंद। नित्य और ईमानदारी से सभी संसाधन करने से मेरा मन मजबूत होगा, मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होगा, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा, दादा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। वेरी गुड। ओके। मूवी देखा था किसने बाला साहब का? श्रेया। નહીં. मीनाक्षी बा। मूवी देखा था? નહીં. अव्यय। नहीं.
oral, नहीं। क्या करने का है आपको? टाइम नहीं मिलता है 6 मिनट में? हम्म, साक्षी बा 6 मिनट नहीं मिला? Rajin Dada, हाँ, बोलो बोलो। I believe let us play it again. I was Can you- thinking केशव दादा आया नहीं Yeah. इसलिए yes. Yeah. Can you do It that? will be better. So I may not. I'll try. Let me see. 1 minute. Okay. જય સચિદાનંદ કેશવ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ વિડિયો આપણે સાંભળીશું. ઓકે. भाई बच्चे लोग नोट्स लिखना और इसका पेरेंट्स पास में हो तो उसको बोलने का, वो भी या सुनने का. साक्षी भाई मम्मी છે તારી? हाँ એમને કઈ સાંભળે? દક્ષ મમ્મી હે? हाँ દર્શલ મમ્મી હે? नहीं Okay, in the meantime quickly दर्शल हाँ प्रोग्रेस क्या है स्टडी में? हाँ स्कूल में जो स्कूल में जो एग्जाम की तैयारी चल रही थी उसका 8 मैंने रिवीजन कर लिया था. मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला प्रोग्रेस कैसा है, आपको कुछ स्केड्यूल है, इतना करने का है, इतना डेली करने का है, कुछ ऐसा है स्केड्यूल? नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब स्कूल ने हमको बताया नहीं है, मतलब सिलेबस अभी तक नहीं दिया है इसलिए पता नहीं है मतलब कितना करना है कितना नहीं करना है, इसलिए स्कूल में जो करवाते हैं वो कर लेता. मंथन आप क्या करते हैं? मतलब स्कूल में जो कराते हैं वो ट्यूशन में रिवाइज करवा लेते हैं और तो अभी कुछ नहीं आगे करना है. कितना कितना टाइम करते हैं आप स्टडी? मतलब तक खत्म नहीं होता है. दिन में कितना दिन करते हैं स्टडी? मंथ दरअसल आप कितना टाइम करते हैं स्टडी? मैं 2 घंटे. 2 घंटा. अभी मैं 2.5 आपका क्या मंथन क्या बोला? अभी आप स्टडी करते हैं? कितना टाइम करते हैं स्टडी? 2.5 hours. और दक्ष 45 मिनट. इतना ही स्टडी करते हैं, स्कूल में नहीं जाते? मैं स्कूल स्कूल में कितना टाइम जाते हैं? सुबह जाता हूँ मैं 8 o'clock. कितना घंटा स्टडी करता है सारा दिन में, वैसा पूछता हूँ. स्कूल का, ट्यूशन का, होमवर्क का, एक्स्ट्रा होमवर्क का? 6 hours. Very good. Devakanji, what happened? Because I am on phone, I don't know how you do that. Oh, you are on the phone? Yeah. No, Okay, give me 5 minutes. I'll turn on my computer. Just give me 5 minutes. Okay. Huh? Okay. Carry on with that. Huh? Okay, right. Okay. तो आज क्या पॉजिटिव नेगेटिव जल्दी बोलो. Yeah.
हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा पॉजिटिव ये था कि मैंने आज जिम्नास्टिक में टेस्ट ली थी, उसमें मैंने अच्छा किया था। और नेगेटिव ये है कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की। ओके, वेकेशन है इसलिए। और बाहर गए थे। बाहर गए थे शॉपिंग करने के, खाने के लिए? नहीं, मेरे फ्रेंड के वहां गई थी। ओह, फ्रेंड के वहां गए। ओके, तो टोरल, आपका वॉइस कट होता है। टोरल सुनाई नहीं देता है। दरअसल हाँ, हमारे स्कूल में आज वीकली टेस्ट थी तो उसका मैंने किया था। आपने स्टडी 2 ही घंटा किया था, दूसरा 10 घंटा क्या किया? स्कूल में जो टेस्ट थी तो कल उसका पढ़ा था, आज टेस्ट थी। कितना टाइम स्कूल में जाते हैं? 8 hours। 3 hours? 8 hours। 8 hours। मंथन, आप भी? 8 hours। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके दक्ष, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है? आज मेरा पॉजिटिव ये था कि आज मुझे दीदी ने काम दिया था तो मैंने वो सारा काम कर दिया था। फिर और मैंने आज मेरा पूरा होमवर्क भी किया था। और मेरा नेगेटिव ये था कि मेरी एक बार मम्मी से लड़ाई हो गई थी। क्या हुआ था? मेरी एक बार मम्मी से लड़ाई हो गई थी। क्या हुआ था लड़ाई में? मम्मी ने आज मुझे बोला था कि मम्मी मुझे पेन दिलाएगी और इस बात पे मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई थी। कैसे, क्या किया आपने, क्या बोला? मैंने चिल्ला के बोल दिया था कि मम्मी आप मुझे पेन कब दिलाओगी। केशवदा, थोड़ी से बात करो, तब तक दीपक जी आएगा। नहीं, अभी तो हम छोटी छोटी बात पे लड़ाई करेंगे तो याद रखने का कि हम ऐसे लड़ाई करेंगे तो दादाजी हमारे पे खुश होंगे, ये अपने आप से प्रश्न पूछने का। क्योंकि मम्मी से तो हम लड़ाई कैसे कर सकते हैं? मम्मी हर एक बात हमारी पूरी करती है। कोई किसी कारण सर अगर वो टाइम पे नहीं हो सकता है चीज, तो फिर हमको पेशेंस रखना चाहिए लाइफ में। पेशेंस नहीं रखेंगे और छोटी छोटी बात पे लड़ाई करेंगे तो फिर हमारा ये जो पूरा ट्रेनिंग सेंटर फिर तो वेस्ट हो जाएगा ना। फिर तो दादाजी भी नाराज हो जाएंगे, हमारा व्यवहार भी खराब हो जाएगा, हम सबके नजर में हम सर उठा के जी नहीं सकेंगे। दादा ने हमको क्या सिखाया कि हमारा ऐसा वर्तन होना चाहिए कि कोई हमारे पे उंगली ना कर सके कि भाई ये आपने गलत किया। तो जो कुछ आप करोगे तो आप किसी से भी पूछोगे तो वो बताएंगे कि आपने अच्छा किया। आप बताओ, सब लोग नहीं। सब ना बोलेंगे ना, सब बोलेंगे ये हमने मम्मी से लड़ाई की तो वो कोई अच्छी चीज की कि बुरी चीज की? बुरी चीज करी। हाँ, तो फिर हमको पश्चाताप होना चाहिए, हमको ऐसा निश्चय करना चाहिए, दादा से माफी मांगनी चाहिए कि हे दादा भगवान, आप इस बार मेरे से ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस कि ये मैं कभी भी मिस्टेक नहीं करूंगा। अगर हम ये पश्चाताप नहीं करेंगे, दादा से माफी नहीं मांगेंगे, तो फिर से हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले रियलाइज करना चाहिए कि हमने सबसे पहले ये गलत काम किया। अगर गलत काम किया हो गया बाय चांस, तो फिर उसका फिर सेकंड स्टेप क्या है कि उनकी मम्मी के अंदर बैठे हुए भगवान से माफी मांगने की, मम्मी से माफी मांगने की और बोलने का मम्मी मेरे से ये भूल हो गई एंड नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस आई विल नॉट डू दिस अगेन। ऐसा पूरा पक्का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कितना ख्याल करते हैं सुबह से लेके शाम तक। और कोई एक छोटी सी बात के ऊपर हम उनका दिल दुखा दे तो अच्छा है? अगर मैं आपसे रोज गुस्से होके बात करूं तो आपको अच्छा लगेगा?
नहीं। हाँ, तो वो सोचने का कि अगर कोई भी मेरे से गुस्से से बात करेगा या मेरे पे कुछ गुस्से हो जाएगा तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसी सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी, मम्मी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता है? कुछ भी काम जो हम करते हैं वो हमको जब अच्छा नहीं लगता है, कोई दूसरा अगर हमारे साथ ऐसा बिहेव करे तो हमको क्या राइट है कि वो ऐसा गलत बिहेव हम अपने पेरेंट्स के साथ करें, मम्मी पापा के साथ करें, भाई बहन के साथ करें। हमारा हमारा जीवन तो प्रेम स्वरूप होना चाहिए। प्रेम स्वरूप का मतलब क्या कि हमारे से, हमारे व्यवहार से सबको प्रेम मिलना चाहिए। हमारा वर्तन ऐसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, हमारी वाणी ऐसी निकलनी चाहिए ताकि सामने वाले को, हमको सामने वाले को खुशी मिले, सामने वाले को आनंद मिले, और सामने वाला ऐसा नहीं बोले कि ये आपने कैसा मिसबिहेव किया। वो हमको हमेशा चेक पॉइंट रखना चाहिए कि हमारा बिहेवियर कैसा है, कि सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे या हमारे पे कोई कहेंगे कि ये हमने गलत बिहेवियर किया। तो हम सबको क्या होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में। अगर हम पेरेंट्स के साथ कुछ भी व्यवहार करते हैं, भाई बहन के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमको चेक पॉइंट रखना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सामने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। दादा भगवान को हम सब लोग क्यों प्रेम से बात करते थे, दादा भगवान के साथ हम क्यों इतना अटैच्ड हो गए थे? क्योंकि दादा का बिहेवियर कैसा था कि सब लोगों को अट्रैक्शन होता था दादा भगवान। क्यों अट्रैक्शन होता था? क्योंकि दादा भगवान प्रेम स्वरूप होके रहते थे, सबको प्रेम देते थे, इसलिए हमको उनके लिए बहुत अट्रैक्शन होता था। तो जो प्रेम स्वरूप रहते हैं उसको सबकी ब्लेसिंग मिलती है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिलती है, और हमको जीवन में अगर ब्लेसिंग्स मिल गई तो हम जो चाहे, जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, जो हम अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, तो हम पहुंच सकते हैं। ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, ताकि सब लोगों को अच्छा लगे। सही है कि नहीं है? हाँ। आपको क्या लगता है सबको? बोलो अव्यय, श्रेया, साक्षी बा, बोलो। आपको क्या लगता है हमारा कैसा जीवन होना चाहिए? बोलो। प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप होना चाहिए। प्रेम Very स्वरूप good. याद है श्रेया क्या होता है? प्रेम स्वरूप हमको मालूम नहीं क्या। अच्छा। अच्छा यानी क्या? साक्षी बा, अच्छा है यानी क्या? यानी कि ऐसा कि सामने वाले जो होते हैं उसे खुशी मिले हमारी वाणी और बर्तन से। अव्यय, अच्छा यानी? और सामने वाले को दुख ना हो। आप मम्मी के साथ ऐसे रहते हैं? नहीं, क्यों? कभी कभी झगड़ा हो जाता है। कभी जगह से। तोरल, अच्छा क्या मीनिंग क्या होता है? हाँ, आप दूर भागे गए थे। दरअसल अच्छा क्या होता है? हाँ, अच्छा व्यवहार क्या होता है? प्रेम जैसा व्यवहार किसको बोलता है? जिसमें कौन किसी से झगड़ा ना करे। मंथन, क्या? आप सुनते नहीं है? तोरल, रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट करो, वेरी गुड। रिस्पेक्ट कैसे कर सकता है तोरल? दक्ष, रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? अपन को उनसे चिल्लाना नहीं चाहिए, उनके साथ अच्छा रहना चाहिए। आपने मम्मी से क्या किया? रिस्पेक्ट दिया कि नॉन रिस्पेक्ट दिया मम्मी को? नॉट रिस्पेक्ट दिया।
रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है जो हमें जो भी कहते हैं वो मानना है, विनय मोरल। में रहना। हाँ श्रेया, हम्म रिस्पेक्ट अ, क्या रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कि हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आप मम्मी को रिस्पेक्ट करते हैं? हेलो, समटाइम्स मैं नहीं करती हूँ। क्यों? तो उसको रिस्पेक्ट बोलता है? नहीं पापा को, करती हूँ। दादा को? हाँ करती हूँ। दैट मीन्स आप मालूम, यू डोंट लव मम्मी, ताकि बात। मैं करती हूँ लेकिन मैं कभी कभार ही चूक जाती हूँ, अभी बहुत कम हो गया है। पापा को पापा को भी करती हूँ। यू डोंट लव मम्मी। औरल मम्मी को भी रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन कभी कभार ही चूक जाती हूँ, अभी बहुत कम हुआ है। कभी कभी नहीं चलता है, रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्ट। अब दादा को अच्छा, पूछेगा कि कभी कभी, ताकि बात तो जान ले आए, दादा को बोलेगा दादा हम कभी कभी करते हैं कभी कभी, तो दादा का क्या रिस्पॉन्स होगा? टैक्सी बात, हाँ, दादा आपके सामने आए, मम्मी के साथ कुछ आपने बोला, अच्छा नहीं बोला, तो दादा क्या बोलेगा? कि तुमने रिस्पेक्ट नहीं किया है मम्मी को। तो उसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? दादा क्या आपको देगा? हम्म? तो अच्छा, हम्म दादा साहब आपने झगड़े करते मम्मी के साथ, होता है तो क्या होता है? अ, दादा दादा बोलते हैं कि मैं मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो तो बस आप तो कुछ एवरीडे बोलते हैं ना। कैसे? हाँ थोड़ा बातें करो कैसे दादा। हम्म। भी वो रिस्पेक्ट यानी क्या होता है कि जैसे बड़े होते हैं, बड़े हमारे कौन है, मम्मी पापा है, दादा दादी है, नाना नानी, ये सब हमारे बड़े कहलाते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जिन्होंने जीवन में हमसे ज्यादा ज्यादा कुछ देखा है, समझा है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो जिन्होंने हमको जन्म दिया है, वो हमारे सब बड़े रिस्पेक्टफुल फैमिलीज हैं, रिस्पेक्टफुल हमारे पेरेंट्स हैं। तो जब आप बात करते हो, जैसे आपने मम्मी पे गुस्सा हो गए तो आपने डिसरिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि मम्मी अगर गुस्से भी हो जाए तो मम्मी को बोलने का, मम्मी प्लीज सॉरी, मेरे से भूल हो गई, उसको रिस्पेक्ट देना बोलते हैं। मम्मी अगर कुछ काम देती है कि जाओ ये जल्दी जाके काम करके आओ, और उनका कहना मान लिया, तो उसको रिस्पेक्ट बोला जाता है। मम्मी बोले अभी पढ़ने का टाइम है, तो हम पढ़ाई करने बैठ गए और ऑन द स्पॉट मम्मी का कहना माना, उसको रिस्पेक्ट देना बोला जाता है। हर एक बात में अगर आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, अगर आप उनका कहना नहीं मानते हैं, तो उसका मतलब आपने डिसरिस्पेक्ट की। वो हमको समझना चाहिए कि हम पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक जब हम घर में रहते हैं, अपने पेरेंट्स से रहते हैं, अगर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है। अगर हमारे पेरेंट्स हमसे खुश है, तो मतलब समझने का कि आपने बरोबर सबको रिस्पेक्ट दिया है। अगर आप उनसे लड़ते हैं, गुस्से हो जाते हैं, कभी कभी आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट में बैठ जाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, तो आपने उनका डिसरिस्पेक्ट किया। वो बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमारी हर एक बात मानते हैं, तो हमको भी उनकी बात माननी चाहिए। इट इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी है। खाली ऐसा नहीं है कि खाली वो पेरेंट्स ही आपसे सब अच्छा करे और आप उनके अगेंस्ट में जाएं। तो जितना वो पेरेंट्स आपको रिस्पेक्ट और लव देते हैं, वैसे आपको भी उनके लिए सेम बिहेवियर रखना चाहिए। सही है कि नहीं? मालूम पड़ा सबको? हाँ और ये तो अभी शक्ति मानने का, दीपिका जी रेडी? Yes. ओके,
तेरा नोट्स लिखना, मंथन, दरअसल, अव्यय, दक्ष, गौरव, प्रिया, साक्षी, वाह। ओह, दीपक ज्यादा चला गया। हम्म। चलो, आपको तब तक किसी को कौन सा क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? वेकेशन है ना केशव दादा, वेकेशन बहुत सबका माइंड वेकेशन में चला जाता है। हाँ, वेकेशन। आ गए। दीपक दादा आ गया, देखता है क्या करेगा। मिला में बाहर खड़ा होना पड़ता था, वहीं करनी पड़ती थी। कई बार प्यासे रह जाते थे क्योंकि स्कूल में चपरासी नहीं आते थे तो पानी पीने को नहीं मिलता था। कोई इनके लिए नल तक चलाना पसंद नहीं करता था। चपरासी आते थे तो नल चला देते थे, पानी पी लेते थे। लेकिन जिस दिन चपरासी नहीं, उस दिन पानी नहीं। आगे चलकर एक आर्टिकल में लिखते हैं, नो पियोन नो वाटर। ये गौरव गाथा उन महापुरुष की है जिन्होंने बचपन में अछूत होना क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, सबका सामना कर लिया और ठान लिया कि सबके विकास के लिए, उत्थान के लिए काम करूंगा। आगे चलकर दुनिया के महान विद्वान बने। 2.5 लाख के करीब किताबें उन्होंने पढ़ी। 64 सब्जेक्ट्स का उनको ज्ञान मिला। 9 भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। 32 से ज्यादा डिग्रीज उन्होंने हासिल की और वो डॉक्टर ऑफ साइंस, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे गए। मैं बात कर रहा हूं दी वन एंड ओनली डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारत के संविधान के निर्माता बने। 1891 14 अप्रैल को 1891 में इनका जन्म हुआ आम्बडवे गांव में। और जब ये स्कूल जाते थे तो इनके सरनेम की वजह से बहुत लोग इनको परेशान करते थे, तो इनके टीचर ने कहा कि आप आम्बडवे से ही अपना सरनेम क्यों नहीं बना लेते। आम्बेडकर नाम जो है इन्हें उपनाम के रूप में मिल गया। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जीवन भर सोसाइटी के विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए लगातार काम किया। 5 छोटी कहानियां जो बहुत कुछ सिखाती हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। लाइफ लेसन्स मिलते हैं हमें उनकी कहानियों से। आइए आपको सुनाता हूं। बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। मैथ्स की परीक्षा ये गौरव गाथा उन महापुरुष दे रहे थे। 10 सवाल उनके क्वेश्चन पेपर में थे, 10 में से कोई 5 सॉल्व करने थे। डॉक्टर बाबा साहेब को सबके जवाब मालूम थे, उन्होंने 10 के 10 सॉल्व कर दिए और नीचे एक नोट लिख दिया कि 5 जो सही लगे उनको आप कंसिडर कर लेना। टीचर वो जो इनकी आंसर शीट थी उसे लेकर क्लास में आए, सबको दिखाया, इनको लगा कि शायद डांटेंगे। टीचर ने कहा कि देखो वैसे तो ये नियम के ऑपोजिट है, लेकिन मैं आपकी उस पकड़ को सलाम करता हूं क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझ गए हो, इसीलिए आपने 10 के 10 सवालों के सही जवाब दे दिए और इनके लिए बाकायदा तालियां बजवाई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की छोटी सी कहानी पहली लर्निंग देती है। लाइफ में डीप एनालिसिस होना, गहरा विश्लेषण करना किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिचुएशन का बहुत जरूरी है। हम कई बार सतही बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जब तक हमें किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम सही समाधान नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा किस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आरबीआई के पीछे भी सोच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की थी। उनकी एक बुक है द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। उसके बेसिस पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1926 में 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन कमीशन कहा गया, उसे इंडिया भेजा क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद में इंडियन करेंसी, हमारी जो करेंसी थी उसकी हालत बहुत गिरती जा रही थी। डॉक्टर आम्बेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए। अपनी बुक के बेसिस पर उन्होंने कहा कि आरबीआई जैसी बैंक जो है हमें बनानी होगी और बाद में उनके सुझावों को माना गया और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये दूसरा किस्सा सिखाता है कि लाइफ में विजन होना
बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरा किस्सा है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का, उनके किताबी प्रेम को लेकर के। उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसका नाम था राजगृह, उसमें 50,000 से ज्यादा बुक्स उन्होंने इकट्ठी की थी। उनसे कोई कहता था कि मुझे किताब दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो वो उधार नहीं देते कोई किताब, वो कहते थे कि मेरी लाइब्रेरी में आइए, वहां आकर के आप अच्छे से उस किताब को पढ़िए। बाबा साहेब के सहयोगी ने किस्सा शेयर किया कि दिल्ली में हम गए थे और पुरानी दिल्ली के उस एरिया में मैं लेकर के गया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को, जहां किताबें मिला करती थी, पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा था। वहां पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि लंच का समय हो रहा है, हमें चलने भोजन के लिए फटाफट चलते हैं, लेकिन वो रुके रहे। उनके वहां पहुंचने की खबर लोगों को मिल गई तो लोग आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, इतने सारे लोग आ गए। लेकिन सबके बीच में भी लगभग उन्होंने 20 से 24 किताबें अपने लिए खरीद ली। इतना उन्हें किताबों से प्रेम था। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने ज्ञान के आधार पर ही हमारे संविधान का भी निर्माण किया और लोगों तक उनका हक मिले इस बात को सुनिश्चित किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लाइफ लेसन है कि नॉलेज गेन करते रहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि मैं फ्री हूं, रिलैक्सेशन के लिए क्या करूं, तो डॉक्टर बाबा साहेब कहते थे कि आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक सब्जेक्ट की छोड़िए, दूसरे की पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं हम इंसानों की। 1943 के लगभग की बात है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब को वाइसराय काउंसिल में जो है शामिल किया गया था और वाइसराय काउंसिल में उन्हें श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। साथ ही पीडब्ल्यूडी का भी उनको जिम्मा दिया गया था। ये जो डिपार्टमेंट था इसका बजट बहुत मोटा था और ठेकेदारों में इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने की होड़ मच गई थी। तो इसी लालच में दिल्ली का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, उसने अपने बेटे को बाबा साहेब के बेटे यशवंत राव के पास में भेजा और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए, 20 से 25%, 50% तक का कमीशन जो है हो जाएगा, ऐसा वैसा उसने बोला। और यशवंत जी भी थोड़ा लालच हैं। आज के लीडर्स को भी लेनी चाहिए, सोसाइटी में हर व्यक्ति को लेनी चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार बने रहिए, ईमानदारी का साथ मत छोड़िए। और पांचवा किस्सा बड़ा ही छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देता है। यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। वहां की जो लाइब्रेरी थी उसके खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे। लाइब्रेरी का समय समाप्त हो जाता था, उसके बाद भी रिक्वेस्ट करते थे पियोन से कि थोड़ी देर और मुझे बैठने दो। तो एक दिन पियोन ने पूछ लिया कि क्या चाहते हो लाइफ से, तुम मौज मस्ती करने नहीं जाते, पार्टी करने नहीं जाते, देखो बाकी बच्चों पार्टी भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं अगर मस्ती करने चला गया तो वहां मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा, मुझे पढ़ाई करनी है, अपने लोगों का उत्थान करना है। ये पांचवा जो किस्सा है ये शेयर करता है लर्निंग, सबसे बड़ा लाइफ लेसन कि हमें सबका ख्याल रखना आना चाहिए, सबके लिए केयर करने की जो फीलिंग है वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और जाते जाते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 3 बड़ी कमाल की बातें। सबसे पहली, जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वो कभी गलत काम नहीं करता है। दूसरी, अपने भाग्य की जगह अपनी मेहनत को, अपनी मजबूती को ज्यादा विश्वास करना शुरू कीजिए। और तीसरी, जिंदगी लंबी होने की जगह महान होनी चाहिए। जिन्हें इंसानों ने छूने नहीं दिया उन्होंने छू लिया आसमान। भारत रत्न, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ओके, तो कल के लिए होमवर्क है, अपना पेरेंट्स को पूछने का आरबीआई क्या चीज है। ओके, लिख लिया सबने। और दूसरा देखो, हार्ड वर्क बोला। और तीसरा, नॉलेज बढ़ाने का। तो आप तो स्टडीज करते हैं, उसके एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे बढ़ाएगा और जरा सोच के कल बताना। ओके, केशव दादा आपको कुछ बोलने का है, ऐड करने का है? नहीं, बस मेहनत और परिश्रम और एम, ये दोनों चीजें होगी तो हम हमेशा मंजिल पे पहुंच सकते हैं। दीपक दादा? सच्चिदानंद, मम्मी डैडी का रिस्पेक्ट के लिए तो हमने बहुत बार बात की है, लेकिन अभी भी हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए विक्रम भविष्य करिएगा। आपको ये मौका, ये छोटी मिलता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसका परिणाम आगे क्या आएगा वो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय